Hello, good morning, all of you. Hello, am I audible to all? Yes, yes, you're audible. Yes, I think all of you are from BCA 5th semester. Yes, Is there any candidate from MCA? Hello, I am requesting all of you to mention their name and regional center name to the message box. Okay, Vishal, good morning. Good morning to all of you. Please mention your name and the regional center you are belong. Yes, Himanshu, Krishna, Shalini, Shubham. Okay. Okay. RC Patna, Vishwajit, RC Bangalore, RC Patna. Okay. Okay. I think all of you are from BCA, not anyone from MCA. Karthik. Yes, please, Karthik. Okay. No question. Okay. Let's start today's session. So you know that this is a BCA 5th semester, and your duty is to submit your synopsis as well as project report in the 6th semester. So I think everyone has to submit their synopsis by choosing a particular topic or title. I think so many students are also waiting. Okay. Hello. Okay. Request from other student. Okay. So let's start. As per the documentation, how to making the synopsis. So I will share you some sample related to your project and synopsis. First of all, let's see. Thereafter, I will consult everyone and solving your problem as well. Is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. yes, sir. Okay, as per the guidelines of IGNOU, I am the academic counselor from Regional Center Darbhanga, myself Ujjal Chanda. So let's see, as per the guideline, so many students are submitting their request. Okay, let's see. So first of all, you have to choose any project title that you are interested to doing the project. So here I select a project title. Let's see, online cricket live score management system.
So there are several chapters for doing your synopsis. The first chapter start with introduction and objectives. So introduction tell us what is your project title, why are you choosing this project title, and what is the existing survey or existing report about this title. If already that is already doing some project in that field in anyone, then you can research the project and thereafter doing some new features or adding some new features within the project title. So introduction and objective is the primary stage of your synopsis. You have to choose any project title, as your synopsis must be software development oriented. So you have to choose any platform, any languages you want to develop. Your software may be online software, web application, or Windows application also, or other applications also. So the first criteria is online cricket live score management system. That is our today's project title. So let's see with that introduction. So first I write here, the online cricket live score management system is a web-based application designed to provide a real-time updates and management of cricket match score and related information. I think most of the student love to see the cricket. That's why I choose this topic. Okay. So first thing is choose the title and discuss about the planning of developing this project on that title, and why are you interested to choosing this title also. So here, introduction. Cricket is one of the most popular and widely followed sports around the world, and most popular in India also. Fans are eager to know the latest score, wicket, runs, and other relevant statistics as they unfold during a match. A traditional media outlets such as television, radio have been the primary source of such information. आप टीवी में भी देख सकते हैं. तो आप सोचे हैं इसी रिगार्डिंग जो है आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं. इंटरेस्टेड टू डेवलप द प्रोजेक्ट ऑन क्रिकेट लाइव स्कोर. क्लियर है? तो कोई भी प्रोजेक्ट टॉपिक आप चूज करें अपने पसंद के बेस पर. आप अपना गाइड के साथ भी, जो गाइड आपका हो सकता है, आप रीजनल सेंटर, जिस रीजनल सेंटर में है उस रीजनल सेंटर में जो एकेडमिक काउंसलर है, या मान के चलिए जिसको एलिजिबिलिटी है, हम प्रीवियस जो क्लास है उसमें डिस्कस किए थे द एलिजिबिलिटी ऑफ एकेडमिक काउंसलर, जो कि आपका गाइड बन सकता है. उसका कुछ क्राइटेरिया है, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा एक बार. यू मस्ट बी इंश्योर अबाउट दैट. ओके. सो नीचे कुछ पार्ट हम लिखे, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स दैट इज योर गोल. तो जैसे कि आप बोल सकते हैं एडवांटेजेस और बेनिफिट्स फ्रॉम योर प्रोजेक्ट. आप मान लीजिए प्रपोजल या सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है. बिफोर डूइंग योर प्रोजेक्ट यू हैव टू सबमिट द प्लान, हाउ टू डेवलप योर प्रोजेक्ट, व्हाट विल बी योर प्रोजेक्ट टाइटल, what category of project is this, like RDBMS, OOPS, artificial intelligence or expert system, anything. तो इस टाइप का जो भी होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना मतलब गोल्स डिफाइन करना, दैट इज बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट. जैसे कि इसमें कुछ लिखा भी है, रियल टाइम स्कोर अपडेट्स. तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसको लाइव स्कोर अपडेट. तो ये एक एडवांटेजेस है, ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप मेंशन करें. तो जब भी आप कीजिएगा सिनॉप्सिस बहुत ज़्यादा पेज का मत कीजिए. देयर इज अ लिमिटेशन डिक्लेयर्ड इन योर गाइडलाइंस, दैट इज 15 to 18 पेज ओनली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव इन द फर्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर, you must select the project category. You have to choose any one category. It may be RDBMS, Relational Database Management System, Object Oriented Programming System, Networking, Multimedia, Artificial Intelligence, etc. And each and every page should have a page number. पेज नंबर होना चाहिए.
that is chapter 2. Chapter 3, that is the analysis part. It includes the DFD. DFD must be at least up to second level. You maybe make it more, third level, fourth level, but doesn't necessary. That is a limitation. But at least 2, 0 level, 1 level, and second level. And thereafter ER diagram, class diagram as well. If your project is based on object-oriented programming system, then there must some classes are attached with that, and there may be a relation between those classes. So that is a part of the third chapter, analysis. And thereafter you have to design the modules in complete structure. That is a chapter 4, complete structure. It includes module description. Here modules means a small task of your project. So suppose your project is vast and it may be partitioned into several small tasks or small activity. Each and every task of your project is known as module. जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑनलाइन जैसे हम लिए हैं तो इसमें मान लीजिए लाइव स्कोर अपडेट कर रहा है तो दैट इज वन मॉड्यूल. सपोज यूजर हैव टू रजिस्टर विद इन दैट सिस्टम, so login and registration process, that is a whole is one module. Statistical analysis of the result, तो statistical जब analysis कर रहे तो वो थर्ड मॉड्यूल में चला जाएगा. तो इस टाइप का. So number of modules and their description to provide an estimation of student effort on the project work. आप अगर मॉड्यूल को लिखते हैं, ईच एंड एवरी मॉड्यूल हो सकता है आपके साथ आपका गाइड का भी सपोर्ट हो, तो कितना परसेंट आप उसमें काम किए, कितना परसेंट आपका गाइड सपोर्ट किया, दैट मस्ट बी अटैच्ड विद दैट. You should follow the divide and conquer theory. So divide the overall problem into more manageable parts and develop each part or module separately. When all modules are ready, you should integrate all the modules into one system. ये मॉड्यूल जितना भी सब पार्ट हो गया है, जब सबका सॉल्यूशन हो जाता है उसके बाद हम लोग एक साथ इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं. क्लियर है? In this phase, you should briefly describe all the modules and the functionality of this module. तो हर एक मॉड्यूल को जब भी आप लिखते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या एक्टिविटी हो रहा है, what are the features included that, what are the activity carried on. So all of this should be mentioned there. Next part within the complete structure after module description, data structure. Data structure and algorithms फ्रॉम द कोड ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट. जैसे कि आपका प्रोजेक्ट जो भी आप बनाते हैं तो डिजाइन पार्ट, फ्रंट एंड पार्ट, बैक एंड पार्ट दोनों आपको डेवलप करना है, बोथ ऑफ. सो इसको आप बोल सकते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट है. फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है. तो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो ट्रेंड देखा जाता है सब वेब डेवलपमेंट ज़्यादा करने का ट्राई करते रहते हैं क्योंकि आपका सिलेबस भी उस चीज़ को फॉलो करता है. जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीखे हैं, फर्स्ट सेकेंड सेमिस्टर में सी सीखे हैं, थर्ड सेमिस्टर में C++, देयर आफ्टर जावा एंड देयर आफ्टर सर्वर पेज, जावा सर्वर पेज इन द फिफ्थ सेमिस्टर, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो एक्चुअली ये जो आपका BCA का सिलेबस है ऑल्सो आपको एक डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की तरफ ही ज़्यादा ले जाता है. तो अगर आप बोलते हैं हम वेब डेवलपमेंट टाइप करना चाहते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो एक्चुअली BCA का सिलेबस के बेस पर आप बोल सकते हैं द सिलेबस ऑल्सो सपोर्ट मी टू मेक मी इंटरेस्टेड अबाउट वेब डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज डेटाबेस डिजाइन. So database design is a core part of your project because your every front-end design that depends on the database design. If your database design is very well, then it is quite comfortable you to develop the website and web application or Android application, anything. You can develop it very easily. तो डेटाबेस डिजाइन का जो पार्ट होता है दैट इज कोरिलेटेड विद द DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, एंड ER डायग्राम. इन द डेटा फ्लो डायग्राम you have to mention the data storage and the data storage must be satisfied with your ER diagram. And thereafter the database design. Database design is a table name, field type, whether the fields are allowed null or not,
or the constraint declared by you. I will also show you a general synopsis format that is already submitted any student of the previous semester and or previous semester. I will show you after that. First of all, you should know what are the topics that should be included within your synopsis. And within the complete structure, also process logic diagram. Process logic diagram, you may include the flow diagram. Flow diagram means you have designed your algorithm in flow chart. That is, flow chart also a process logic diagram. So process diagram called flow diagram. Flow diagram represent the process, participants, activity sequence, information exchange during a process, and a trigger event. Processes can also detail the different check, choices and coordination that exist within a sequence of activities. तो जो भी प्रोसेस उसमें रहेगा तो एक दूसरे के साथ किस टाइप का रिलेशन है वो फ्लो चार्ट में आपको दिखाई देना है. जैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, स्टार्ट. देयर आफ्टर इनपुट अगर लेते हैं तो इनपुट, एंड देयर आफ्टर प्रोसेस होता है, या इज देयर एनी कंडीशन चेकिंग इज देयर, तो कंडीशन चेकिंग दे सकते हैं. इज देयर एनी रिपोर्ट जनरेशन, तो रिपोर्ट जनरेशन के लिए ऑप्शन दे सकते हैं. आई विल शो यू द प्रोसेस लॉजिक डायग्राम फ्रॉम माय प्रीवियस स्टूडेंट. ओके, प्रीवियस स्टूडेंट सिनॉप्सिस सबमिशन. Okay, and thereafter the testing detail. Testing is a process to check whether your project is completely executed successfully or not. Is there any error arises or not, and how to remove your error, in which technique you have to follow for this project. So normally most of the students are discuss about the unit testing, integration testing, system testing and module testing also, because those testing are also given to your software engineering part. So you have to follow this subject, software engineering, and from there you have to learn some testing rule in the case of unit testing, integration and module testing also. And the last thing in complete structure is report generation. Report generation is the mention the tentative content, not the exact of the report. जो कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फाइनली जो जमा करना है उसमें जो रिपोर्ट आएगा उसका एक टेंटेटिव पार्ट आपको दिखाना है, और द वर्क समरी और द टास्क प्लानिंग. तो आप रिपोर्ट जनरेशन में इस टाइप का कर सकते हैं, जो आप गैन चार्ट लगा सकते हैं, पार्ट चार्ट लगा सकते हैं. Both charts are also included for software project planning. That is, sir, my task is completed within 3 months, within 5 months. जैसे कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, देयर आफ्टर डिजाइन, देयर आफ्टर कोडिंग, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. So each and every phase requires some time to design or coding. I think coding take more time, coding and testing takes more time than the design and analysis. So आप इसमें include कर सकते हैं Gantt chart and part chart as a timeline of your report. So that is the complete part of the complete structure. Once again I repeat, the complete structure include module description, data structure, database design, process logic diagram, testing details and report generation. Next part is chapter 5, tools or platform. So hardware and software requirement specification. So which platform you are using for doing your project. It may be PHP, MySQL concept, it may be Python, Django concept, it may be active server based concept, or it may be the Java server based concept, and any other technology you have to you want to interested to develop on that platform or languages. So here system configuration needed for your software. Actually software के लिए आपको किस टाइप का system configuration चाहिए, that is the hardware requirement, and front-end software and back-end software willing to use in your proposed software. Mention the programming language or स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं उसको भी आप मेंशन कर दें. ओके, दैट इज द चैप्टर 5. नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 6, दैट इज अ प्रोजेक्ट प्लेस. दैट इज अ स्पेशल केस.
are you doing this project for any industry or client? Suppose you are interested to doing your project in TCS or IBM. So the industry level, तो इंडस्ट्री में जब आप करने के लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका एक लेटर इशू होता है एंड दैट मस्ट बी साइन विद द रीजनल सेंटर, क्योंकि उस लेटर में आपका रीजनल सेंटर का भी सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि रीजनल सेंटर आपको अगर परमिट करता है, इफ द रीजनल सेंटर परमिट यू to doing your project in the industry, so you can move on industry and any client. Here client means जैसे कोई शॉप के लिए आप बनाना चाहते हैं तो वो आपका क्लाइंट हो गया. तो क्लाइंट के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें वेलकम है, तो उसके लिए भी आपको मेंशन करना पड़ेगा येस या नो. अगर इंडस्ट्री और क्लाइंट किसी के लिए आप नहीं बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें नो करके प्रोसीड करना है. तो कंपलसरी नहीं है जो आपको इंडस्ट्री और क्लाइंट के लिए करना है. आप एकेडमिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आई थिंक सबका एक बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस करके छोटा छोटा पेज डिजाइन करने का पार्ट होगा. तो इस बेस पर आपका प्रिलिमिनरी स्टेज बोलते हैं हम लोग, तो इसमें ज़्यादा क्लाइंट के लिए नहीं होता है. तो नॉर्मली आप होम में बैठ के भी इसको डेवलप कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंटेड इन लोकल होस्ट टू. इट डजंट नेसेसरी टू upload this website web portal to a particular domain name, and that doesn't necessary to host this website to the web page. Okay, so that is the project place, the chapter number 6. And chapter number 7, future scope and further enhancement. You should mention the area where your proposed software to be utilized and demanded. आप जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, एक्चुअली ये चीज कहाँ पर यूज होता है, यूटिलाइजेशन क्या है, डिमांड कहाँ पर है. ऑल्सो स्टेट द एरिया ऑफ मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस दैट कैन टेक प्लेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोपोज्ड सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर. हो सकता है सब फीचर्स आप इस सॉफ्टवेयर में डाल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी फीचर्स हो सकता है दैट मे बी अटैच्ड इन after development. So describe two things. Firstly, new areas of investigation promoted by developments in this project, and secondly, part of the current work that are not completed due to the time constraint and or problem encountered. क्योंकि आपको एक साल के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को जमा करना है. अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, तो इसके लिए कुछ फीचर्स हम अटैच नहीं कर पा रहे हैं, and that can be added in the later stage of development. You have to mention those things, those features are not available in my software and project. That is the last part. So there are total 7 chapters that must be included in your synopsis. Clear है? Okay, एक आपको brief idea दे दिए हैं. अब इसके बेस पर जो है हम एक सैंपल आपको दिखाना चाहेंगे जो इस टाइप का एक कंप्लीट सिनॉप्सिस जो है किस टाइप का होगा. सो इस बेस पर हम उसको दिखा. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, let's see. ओके, ये थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं. One of the student of myself submitted such type of project in digital healthcare. So the first case, the first point is title of the project. So here start with number 2. Clear?
So introduction and objective in the first part. Project category. So here the student choose the RDBMS, that is Relational Database Management System, and what is the purpose of using choosing this project category, क्यों चूज कर रहा है, उसके बारे में कुछ फीचर्स एंड एडवांटेजेस he mentioned here, advantages of RDBMS, and the project also uses the concept of OOPS. So both are declared here, OOPS and RDBMS. That is the database design. Say the table name is wellness report. जैसे कि हम बोले हैं, जो कोई भी टेबल जब भी आप यूज करते हैं डेटाबेस डिजाइन में, तो डेटाबेस डिजाइन में ओनली आपको टेबल का फील्ड नेम क्या होगा, द डेटा टाइप, व्हाट टाइप ऑफ डेटा सपोर्टेड ऑन दैट फील्ड, इज देयर एनी नल वैल्यू. जैसे नल वैल्यू हम लोग इस टाइप का बोलते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्म में मैंडेटरी फील्ड लिखा रहता है या रेड कलर का एस्ट्रिक लिखा रहता है. तो फॉर्म फिलअप जब भी होता है तो ऑटोमेटिकली अलाउ नल नो, इट मीन्स द फील्ड्स आर मैंडेटरी. जहां पर अलाउ नल यस रहेगा मीन्स द फील्ड्स आर ऑप्शनल, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं. तो इस बेस पर लिखा जाएगा. एंड द कॉन्स्ट्रेंट जैसे कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये सब चीज आपको पॉइंट आउट करना है उस टेबल के अंदर. सिमिलरली जितना भी टेबल्स है आपको दिखाई दे रहा है, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, टेस्ट रिपोर्ट, ट्रैक, तो इस टाइप का आप जो है डेटाबेस टेबल को डिजाइन कर सकते हैं. हेलो सर. यस. मेंटर्स के मतलब मेरे कोई कांटेक्ट में मतलब पर्सन नहीं है जो कि मेरे मेंटर्स में आ सकता है, तो मेंटर हम किसको चूज करें? अच्छा सर, थोड़ा होल्ड कीजिए, हम हर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर दे देंगे. हम जस्ट सबको एक पैटर्न फॉलो करवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं. ओके ओके सर. अच्छा, जीरो लेवल डीएफडी, दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी आप लोग बोल सकते हैं. तो इसमें आपका जो यहाँ पर डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम है, दैट इज योर सॉफ्टवेयर. ठीक है. एंड द टाइप ऑफ यूजर, जैसे कि नॉर्मल जो पेशेंट है वो यूज कर सकता है, तो यहाँ पर यूजर का मतलब है पेशेंट. यहाँ पर दूसरा टाइप ऑफ यूजर जो है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी इसको यूज कर सकता है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वो यूज कर सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन जो है, जो मेन कंट्रोलर ऑफ योर सिस्टम, वो भी इसको यूज कर सकता है. तो इस बेस पर जब भी आप जीरो लेवल बनाते हैं तो जीरो लेवल में एकदम कोर कॉन्सेप्ट को डालिए. जो मेरा जो सिस्टम है उसमें कितना टाइप का यूजर है. हो सकता है जैसे कि आप अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट का पार्ट रहेगा और एक एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट रहेगा या स्टाफ का पार्ट रहेगा. तो इस टाइप का कितना मेन यूजर है उसको आप डिफाइन कर दें. बट इसमें जब भी आप डीएफडी बनाते हैं तो आपको नॉर्मली 4 ही सिंबल यूज करना है. एक एरो सिंबल जो कि डायरेक्शन दिखाने के लिए, ओवल सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं तो वो एक्चुअली प्रोसेस के लिए होता है. अगर रेक्टेंगल बॉक्स यूज करेंगे तो एंटिटी के लिए होगा, और ओपन एंडेड रेक्टेंगल बॉक्स अगर यूज करते हो तो डेटाबेस के लिए है. तो हम और भी दूसरा भी प्रोजेक्ट आपको सैंपल सिनॉप्सिस का सैंपल दिखाएंगे जो और भी बेहतर वे में जो है डीएफडी को कैसे बना सकते हैं. पहले ये देख लेते हैं हम लोग. तो जीरो लेवल, 1 लेवल, तो इस डीएफडी में कुछ प्रॉब्लम है. सर प्रॉब्लम क्या है? सर इसमें जो है जीरो लेवल कैसे आइडेंटिफाई होगा, 1 लेवल कैसे आइडेंटिफाई होगा, इसमें नहीं दिया गया है. नॉर्मली जब भी 0 पॉइंट होगा तो 0.0 इस टाइप का लिखा रहेगा, 1 पॉइंट होगा तो 1.0 से स्टार्ट होगा. तो इस टाइप का लेवल इंक्रीज होगा. हम दूसरा डीएफडी जो है मेरे पास उसको दिखाएंगे. तो ऐसे करके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो जैसे कि डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये जो पार्ट है ये डेटाबेस है. और दूसरा चीज है एक एरो जो है, एरो सिंबल, 1 एरो दूसरा एरो के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, कट नहीं कर सकता है. तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीएफडी बनाने के टाइम में आपको ये चीज ध्यान रखना जरूरी है.
और सब जितना भी फिगर यूज होगा उसमें फिगर नंबर को मेंशन कीजिए और फिगर का टाइटल क्या है वो भी मेंशन कर दें। फिगर और टेबल दोनों में आपको ये चीज मेंशन करना जरूरी है। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है टेबल नंबर 1, अगर इमेज रहता है तो उसमें लिखा रहेगा फिगर नंबर 1 और उसका इमेज का कैप्शन क्या है वो भी डिक्लेरेशन करना जरूरी है। तो इस टाइप का मान लीजिए आपका फर्स्ट लेवल का डीएफडी हो गया या सेकेंड लेवल का डीएफडी हो गया, तो इस टाइप का जो है आगे बढ़ते जाएगा। अब जितना भी आपने टेबल बनाया है उस टेबल के साथ आपको रिलेशन बनाना जरूरी है। जो भी इसमें डेटाबेस डिजाइन होगा उसी में जो टेबल का नाम रहेगा उसी टेबल का यूज कीजिए। यू मस्ट बी यूज दोज टेबल दोज आर ऑलरेडी डिजाइन इन डेटाबेस डिजाइन एंड ऑल्सो इन डीएफडी, दोनों में यूज होगा ये टेबल। एक्चुअली हियर द टेबल्स मीन्स द एंटिटी। तो एक्चुअली एंटिटी के बेस पर हम लोग इसमें देखते हैं टेबल में कितना जो है एंटिटी, डेटाबेस में कितना एंटिटीज है और कितना टेबल है, और जितना भी टेबल्स होगा उस टेबल के साथ 1 by 1 आपको रिलेशन बनाना है। अभी रिलेशन ईआर डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जब भी इसमें, जैसे कि इसमें रजिस्टर्ड यूजर आपको दिखाई दे रहा है, रजिस्टर्ड यूजर एंड वेलनेस रिपोर्ट। तो इसके साथ जो है जब हम लोग लाइन को ड्रैग किए हैं, इसमें देखो 1 2 3 करके दिया है, 3 टाइप का, 3 इस टाइप का लाइनिंग खींचा गया है एंटिटी के साथ जब हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है 1 to 1 रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब एक यूजर के साथ एक ही रहेगा, या 1 to many हो सकता है, या many to 1 हो सकता है एंड many to many हो सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप का होना चाहिए। और एंटिटी में जब भी आप एट्रीब्यूट को प्लॉट करते हैं तो इसमें प्राइमरी की डिफाइन जरूर कर दीजिएगा। प्राइमरी की में होता क्या है उसमें आपको अंडरलाइन कर देना है। आप बुक में भी देखे होंगे जो ईआर डायग्राम जब बनाया जाता है तो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन रहता है। तो इस टाइप का आप डीएफडी ईआर डायग्राम एंड डेटाबेस डिजाइन को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद जैसे कि आपका नेक्स्ट जो आएगा मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल जैसे कि इसमें एडमिन मॉड्यूल है, यूजर मॉड्यूल, डॉक्टर्स मॉड्यूल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल मॉड्यूल, डिजीज एंड कंडीशंस मॉड्यूल, हेल्दी लिविंग, हेल्थ कॉर्नर, टूल्स एंड रिसोर्सेज, कम्युनिटी एडवाइसेस, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सब मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि देयर आर 10 मॉड्यूल्स इन माय प्रोजेक्ट, वो आप मेंशन कर दें एंड द मॉड्यूल्स आर एज फॉलोज, तो आप उसको लिस्ट आउट कर दीजिए। एंड देयर आफ्टर हर एक मॉड्यूल में जो है आपको लिखना पड़ेगा एडमिन मॉड्यूल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें कुछ सब मॉड्यूल है या नहीं है, यूजर मॉड्यूल में किस टाइप का एक्टिविटी हो रहा है, इसको भी आप मेंशन कर दें। तो एक हर एक मॉड्यूल के लिए आपको इस टाइप का लिखना पड़ेगा। देखो नीचे एक चार्ट है ना, तो चार्ट में हम यहाँ पर दिखाया गया है एस्टिमेशन ऑफ लर्नर्स एंड गाइड एफोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट। तो जैसे कि एडमिन यूजर जितना भी मॉड्यूल है उसके बेस पर जो है कितना परसेंट लर्नर का एफोर्ट है, कितना परसेंट गाइड आपको या मेंटर आपको हेल्प किया है, तो इसका एक परसेंटेज हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट प्रोसेस लॉजिक डायग्राम। तो प्रोसेस लॉजिक डायग्राम में आप डायरेक्टली मॉड्यूल वाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए किस टाइप का होगा, एक बेसिक लेवल का जो है प्रोसेस लॉजिक आप दिखा सकते हैं इस वे में। फॉर डिस्प्ले ड्रग डिटेल, कैसे ड्रग डिटेल को दिखाई देगा, तो उस बेस पर भी हो सकता है। तो मॉड्यूल वाइज जितना भी है तो सबका एक सैंपल जो है आप मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन के बाद ही प्रोसेस लॉजिक चार्ट, प्रोसेस लॉजिक डिजाइन आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं टेस्टिंग प्रोसेस। जैसे कि इसमें टेस्टिंग में किस टाइप का है, वेरिफिकेशन है, वैलिडेशन है, एंड टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब आप करना चाहते हैं अभी तक हुआ नहीं है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आप करना चाहते हैं अभी तक हुआ नहीं, जस्ट मेंशन द टाइप ऑफ टेस्टिंग with their some description, that is those testing I interested to apply in my project whenever it is developed. Okay, next the type, after type of testing रिपोर्ट जनरेशन, जैसे किस टाइप का रिपोर्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्लानिंग नहीं दिया गया है। रिपोर्ट नंबर 1 रजिस्टर्ड यूजर डिटेल हो सकता है, रजिस्टर्ड डॉक्टर डिटेल्स हो सकता है, असाइन प्रोफेशनल डिटेल हो सकता है, तो उस टाइप का आप टेंटेटिव एक देख सकते हैं। देयर आफ्टर टूल्स प्लेटफॉर्म, उसमें आप सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, बैक एंड सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, वेब ब्राउजर, फ्रेमवर्क, वेब सर्वर, ये सब कुछ मेंशन कर सकते हैं।
या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में भी सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी आप मेंशन कर दें। एंड द प्रोजेक्ट प्लेस, जो कि बोले थे, जो आप इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं, क्लाइंट के लिए कर सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, क्वेश्चन को थ्रो किया गया है, आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर एनी इंडस्ट्री और क्लाइंट, मेंशन यस नो, इफ यस मेंशन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंडस्ट्री और क्लाइंट। तो नो करके आगे बढ़ गए हैं। फ्यूचर स्कोप एंड लिमिटेशन, या इसका जो है एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, लिमिटेशन क्या है, या इसमें कौन कौन फीचर्स हम लोग बाद में अटैच कर सकते हैं, इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। देखो लास्ट में पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा है 16, तो ऑटोमेटिकली 15 से 16 पेज के अंदर ही, या मैक्सिमम जो है 20 पेज के अंदर आप ट्राई कीजिए इसको बाइंड करने के लिए। क्लियर, बहुत बड़ा मत कीजिएगा। तो एक सैंपल आपको हम एक चीज दिखा है। दूसरा, ये चीज जो डिजाइन हुआ था, ये आपका वर्ड MS ऑफिस का जो वर्ड सॉफ्टवेयर है उसमें जो है डिजाइन किया गया है। बट नॉर्मली अभी का जो ट्रेंड है उसमें जो है आप स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का यूज करें, उसमें डिजाइन और भी अच्छा से कर सकते हैं। तो आप लैटेक्स का यूज कर सकते हैं। लैटेक्स का अगर यूज करके बनाते हैं तो उसमें प्रोफेशनल वे में आपका डिजाइन होगा। हम दिखाते हैं जो लैटेक्स का यूज करके जब बनाया जाता है तो उसमें किस टाइप का डिजाइन रहेगा। ये MCA का है, तभी हम उसी टाइप को फॉलो करके दिखा रहा है जो किस टाइप का बनाया है। क्योंकि लैटेक्स का अगर यूज करते हैं तो एकदम पहले से ही आपको किस टाइप का फॉन्ट का यूज कर रहे हैं या कितना साइज का करना है उसमें पहले से मेंशन कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर जो कंटेंट पेज आपको दिखाई देता है ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है लैटेक्स का अगर यूज करते हैं। तो आप YouTube में वीडियो देख सकते हैं जो कैसे लैटेक्स में हम लोग अपना सिनॉप्सिस को बना सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से बनता है, जैसे बुक राइटिंग होता है उसी टाइप का बनता है। ओके, अब इसमें जो है प्रोजेक्ट टाइटल, देखो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो प्रोजेक्ट टाइटल जब भी आप बनाइएगा टाइटल पेज में, वहाँ पर किस टाइप का चीज मेंशन कीजिएगा। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वेडिंग प्लानर वेबसाइट बाय कौन बना रही है, जैसे कि एक स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, अंडर गाइडेंस ऑफ, किसका गाइडेंस में हो रहा है, सबमिटेड टू स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो SOCIS, पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। आप डिग्री के जगह पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर दें, उसके बाद कहाँ पर आप सबमिट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। दैट इज योर फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज, टाइटल पेज। उसके बाद कंटेंट के बाद यहाँ पर देखो एक चीज दिखाई दे रहा है, लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो आप अपना सिनॉप्सिस में जितना फिगर का यूज किए हैं तो उसको दिया गया है। जैसे 5.1 में गैन चार्ट है तो पेज नंबर कितना में है, तो ये सब चीज ऑटोमेटिकली आ जाता है लैटेक्स का अगर यूज करते हैं तो, या वर्ड में भी आप बना सकते हैं। सिमिलरली टेबल का अगर यूज किए हैं तो टेबल कौन कौन टेबल है, कितना नंबर पेज में है, ऑटोमेटिकली इस टाइप का हो जाता है तो देखने में अच्छा लगता है। चैप्टर नंबर 1, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे ऑनलाइन वेडिंग प्लानर वेबसाइट। तो वेडिंग के लिए वेबसाइट बना हुआ है, जो वेडिंग प्लान करने के लिए जो होता है, हॉल बुकिंग होता है या जो भी होता है उसके हिसाब से। अभी जैसे कि इंट्रोडक्शन किस टाइप का दिया जाता है, तो देखो जैसे कि चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसको मेंशन कर दें, ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैटेगरी जो होगा उसको आप मेंशन कर दीजिए, किस टाइप का प्रोजेक्ट कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं। तो आप जैसे आपका जो BCA का गाइडलाइंस है वो बाद में टूल्स एंड प्लेटफॉर्म है, बट MCA में पहले भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। टूल्स और प्लेटफॉर्म इंडिकेट कर दे, उसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इसमें SRS इंक्लूड किया गया है, जो कि BCA में आप SRS नहीं भी इंक्लूड करते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूल, जो आप किस डेट को, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो फेज है उसके ऊपर बेस करके आप ये डायग्राम को ऑनलाइन बना सकते हैं। ऑनलाइन गैन चार्ट या ऑनलाइन पार्ट चार्ट में आप अगर डायरेक्ट एक्सेल शीट बना लीजिएगा तो उसको प्लॉट कीजिएगा, इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा। जो आपका कोडिंग करने में कितना टाइम लगेगा, मॉड्यूल डिजाइनिंग में कितना टाइम लगेगा, ये सब चीज मेंशन रहना चाहिए। गैन चार्ट। स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर अप्लाई होगा, किस किस जगह के लिए
हो सकता है ये अप्लाई होगा। इम्प्लीमेंटेशन एरिया, अच्छा, जैसे कि इसमें एक ईआर डायग्राम दिया गया है। ये जो ईआर डायग्राम बनाया गया है ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर का यूज करके बनाया गया है जिसका नाम है स्टार यूएमएल। स्टार यूएमएल का अगर यूज करते हैं तो आप इसमें भी ईआर डायग्राम इस वे में भी बना सकते हैं। जैसे कि ऊपर में टेबल का नाम आपको दिखाई दे रहा है, कस्टमर, कार्ड, इनविटेशन, उसके बाद रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, उसके बाद प्राइमरी की, फॉरेन की, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो स्टार यूएमएल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके भी जो है आप उस टाइप का डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप डीएफडी आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि 0 लेवल है इसीलिए 0 करके पुट किया गया है। इसमें टोटल यूजर क्या है, कैसे रिस्पॉन्स हो रहा है 0 लेवल में। उसके बाद 1 लेवल, तो देखो यहाँ पर 1.0, 1.3, 1.7 ऐसे करके लिखा है, तो इसमें क्लियर हो जाता है ये 1 लेवल का डीएफडी है। अच्छा, सिमिलरली ये सबके लिए जितना टाइप का यूजर है सबके लिए 1 लेवल बनाया गया है। जैसे एडमिन डीएफडी लेवल 1, सिमिलरली कस्टमर डीएफडी लेवल 1, तो जितना यूजर है, डिजाइनर डीएफडी लेवल 1, फोटोग्राफर अगर है उसका डीएफडी लेवल 1, सिमिलरली 2 लेवल एडमिन डीएफडी लेवल 2 अब एक दिखाया गया है। देखो यहाँ पर 2.0, 2.1 ऐसे करके लिया गया है, तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड लेवल को इंडिकेट कर रहा है। आप अगर इस टाइप का करते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है कि ये सेकंड लेवल का है। और ये जो टूल उसमें ऑलरेडी दिया रहता है, जो प्रोसेस के लिए क्या यूज किया जाएगा उस सॉफ्टवेयर में से ही ऑटोमेटिकली आप उसको बना सकते हैं। तो ये एक पार्ट है, बहुत सिस्टमेटिक वे में आप अगर बनाने के लिए तैयार है या थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं तो इस वे में भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा से बनता है। क्लास डायग्राम ऑटोमेटिकली स्टार यूएमएल में वो भी फीचर्स है, आप क्लास डायग्राम बना सकते हैं, डीएफडी बना सकते हैं, ईआर डायग्राम बना सकते हैं, वहां से ये बन जाता है। देखो यहाँ पर भी एडमिन, डिजाइनर, फोटोग्राफर, कस्टमर, कार्ड, वेंडर, जो भी ईआर डायग्राम में रहता है लगभग उसी टाइप का क्लास भी इसमें डिजाइन हो जाता है, और क्लास के साथ रिलेशनशिप वो भी इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारा डायग्राम एक्स्ट्रा है, एक्टिविटी डायग्राम आपको जरूरत नहीं है, या स्टेट डायग्राम वो भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एमसीए का पॉइंट ऑफ व्यू से था। डेटाबेस डिजाइन, तो इसमें एडमिन के लिए क्या ऑप्शन है, फील्ड क्या रहेगा, डेटा टाइप क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट क्या है, तो कस्टमर टेबल, तो सब टेबल को जो है आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग में सिनॉप्सिस में सब बीसीए हो या एमसीए हो सब सेमी टाइप का होता है, थोड़ा कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा रहता है। अच्छा, टेस्टिंग, किस टाइप का टेस्टिंग यूज किया जाएगा उसके बारे में भी आपको भी जैसे डिटेल देना है, एमसीए में भी देना पड़ता है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जैसे मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, एडमिन मॉड्यूल, डिजाइनर मॉड्यूल, ये सब पार्ट को इंक्लूड करना जरूरी है। ओके, प्रोसेस लॉजिक चार्ट, इसका प्रोजेक्ट लॉजिक चार्ट थोड़ा अलग है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एडमिन मॉड्यूल, कस्टमर मॉड्यूल, डिजाइनर मॉड्यूल, फोटोग्राफर मॉड्यूल, फिर उसमें जैसे आप लोग फ्लो चार्ट डिजाइन किए थे तो उसी टाइप का जो है फ्लो चार्ट आपको डिजाइन करना पड़ेगा लॉग इन टू लॉग आउट तक। तो हर एक चीज का जो है यहाँ पर प्रोसेस लॉजिक चार्ट क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूजन में चला जाता है, सर प्रोसेस लॉजिक डायग्राम या प्रोसेस लॉजिक चार्ट कैसे बनाएंगे, तो एक्चुअली वो फ्लो चार्ट बनाना है। इम्प्लीमेंटेशन मेथोलॉजी अब नहीं दीजिए क्योंकि ये बीसीए के लिए नहीं है। नेटवर्क आर्किटेक्चर ये भी नहीं चाहिए। फ्यूचर्स को फर्दर एनहांसमेंट दोनों में रहेगा, तो इस टाइप का आपका एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें बिब्लियोग्राफी अटैच करना जरूरी रहता है एमसीए के लिए, बीसीए के लिए जरूरी नहीं है, अब दे भी सकते हैं, अगर यूज करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये था लगभग में आपको एक आइडिया देने का ट्राई किए थे, जो कि कोई एक सिनॉप्सिस सर देखने में किस टाइप का होता है, किस टाइप का चीज इंक्लूडेड रहेगा, तो उसका गाइडलाइंस क्या है। हम एक बार गाइडलाइंस को भी आप लोगों को दिखा देते हैं, जिस गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया जाता है।
सर आप ये सैंपल ग्रुप पे शेयर करोगे? हम अगर ग्रुप में इस सैंपल को शेयर कर देंगे, हम सैंपल जो भी पहले दिखाए थे ना, वो ऑनलाइन लाइव स्कोर Yes, वाला sir. किस टाइप का पॉइंट अटैच करना है उसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके सर। नहीं तो सब कॉपी करने लग जाएगा। यस सर। अच्छा, ये गाइडलाइंस आपको दिखाई दे रहा है? सर ये हार्ड कॉपी में सबमिट हो गया, सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी में। अभी एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जब भी आप सिनॉप्सिस दे रहे हैं वो हार्ड कॉपी में सबमिट हो जाता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट सबमिट कीजिएगा उसका हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है, और सॉफ्ट कॉपी भी जो है इग्नू का वेबसाइट में ऑनलाइन सबमिट करना है। अच्छा, गाइडलाइंस का जो ये है पीडीएफ है वो दिखाई दे रहा है? यस सर। जी, इसमें जो जो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किए थे उसको आपको दिखा देते हैं, या रूल्स रेगुलेशन को आप लोगों को भी एक बार पढ़ना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पेज होगा। जब भी आप सिनॉप्सिस बना लीजिएगा उसके बाद उससे सबसे पहले जो है यही पेज रहेगा। इसमें क्लियरली आपको एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर, स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी सब कुछ रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ द गाइड, जो भी गाइड होगा तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है उसके हिसाब से ही आपको सेट करना है। ओके, इंडस्ट्रियल और टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द गाइड इन ईयर्स में लिखे। इट मे बी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स या 20 ईयर्स, जो भी है। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोजेक्ट अगर विजुअल बेसिक में बना हुआ है, MS एक्सेस एज फ्रंट एंड एंड बैक एंड, अगर इस टाइप का विजुअल बेसिक एंड MS एक्सेस इसको अगर यूज करते हैं, विजुअल बेसिक को फ्रंट एंड में और MS एक्सेस को अगर बैक एंड में, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और यूज ऑफ C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। आपका प्रोजेक्ट अगर RDBMS रिलेटेड है तो उसमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते। ये दोनों क्राइटेरिया है। अच्छा, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइड शुड नॉट गाइड मोर देन 8 स्टूडेंट ऑफ BCA एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी गाइड 8 से ज्यादा स्टूडेंट BCA का गाइड नहीं कर सकता है, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है। तो इसी चीज को जो है फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, और चीज, अटैच दिस प्रोफॉर्मा अलोंग विद द गाइड्स बायोडाटा एंड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यही प्रोफॉर्मा बाद में भी जब रिपोर्ट होगा तो उसमें भी इसको जो है अटैच करना है, गाइड्स बायोडाटा और प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के साथ। नॉट मोर देन 1 स्टूडेंट इज परमिटेड टू वर्क ऑन ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा स्टूडेंट वर्क नहीं कर सकता है, मतलब सबका प्रोजेक्ट इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, नॉट द ग्रुप प्रोजेक्ट। Complete project as per the comments of Synopsys evaluator, then only submit your project report. तो complete project as per your comments of Synopsys evaluator, मतलब evaluator आपको अप्रूव करने के बाद भी कुछ सजेशन दे सकता है। उस सजेशन को फॉलो करके आपको रिफॉर्म करना चाहिए। अगर आप वो रिफॉर्म नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है आप सबमिट किए आपका सिनॉप्सिस, आपका इवेल्युएटर जो कि आपको अप्रूव किया है तो उसमें कुछ सजेशन लिखा है। यू मस्ट फॉलो द सजेशन एंड द रूल्स ऑफ रिफॉर्मिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर? जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कीजिएगा उस सजेशन को फॉलो करते हुए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जमा कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसमें जो है, प्रोफॉर्मा फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल ड्यूली फील्ड साइन बाय बोथ द स्टूडेंट एंड द प्रोजेक्ट गाइड विद डेट। जब भी आप प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा कीजिएगा, नंबर 1 क्या होना चाहिए, आपका ऊपर का जो प्रोफॉर्मा अभी दिखाया है उस प्रोफॉर्मा को फिलअप करना पड़ेगा। उसमें सिग्नेचर स्टूडेंट का भी होगा, गाइड का भी होगा। उसके बाद गाइड का बायोडाटा ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड, हिज और हर सिग्नेचर एंड डेट। गाइड का बायोडाटा उसमें लगाइए और उस बायोडाटा में गाइड का सिग्नेचर होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो कि हम दिखाए थे अभी इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव करके, जो भी पार्ट बनाए थे बोले थे। जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है 12 से 15 पेजेस के अंदर
तो अगर 20 पेज भी कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कारण कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट, अगर आपका रीजनल सेंटर दूरी में है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस सबमिट होता है नॉर्मली रीजनल सेंटर में, अगर आपका घर डिस्टेंस में है तो ऑटोमेटिकली आप बाई पोस्ट भी इसको भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका रेस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज आप जाके भी डायरेक्टली जाके सबमिट कर सकते हैं। क्लियर? अभी रीजनल सेंटर से आप मालूम कर लीजिएगा आपका सिनॉप्सिस सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है, क्योंकि इट मे बी वेरी फॉर इंडिविजुअल आरसी। नॉर्मली जो डेट रहता है वो आपका जो असाइनमेंट का डेट रहता है उसी में आपको सबमिट करना चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरिया है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये चीज और एक चीज ध्यान दीजिए, एक कॉपी आप जमा कर दीजिएगा। ये फोटो कॉपी ऑफ द कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल अलोंग विथ प्रोजेक्ट प्रोफॉर्मा, जितना भी आप जमा कर रहे हैं उसका एक फोटो कॉपी बना के रखें, जिसमें आप रिसीविंग लेके रखें। नहीं तो अगर कुछ बाद में मान लीजिए आपका सिनॉप्सिस नहीं मिल पा रहा है तो आप दिखा सकते हैं इसमें हमको रिसीविंग है। तो आपका जो फोटोकॉपी रहेगा उसमें रीजनल सेंटर आपको रिसीविंग देता है, जो यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड सिनॉप्सिस टू द रीजनल सेंटर। और आपको भी बाद में जो प्रोजेक्ट बनाइएगा तो वो सिनॉप्सिस का आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, उसको कहाँ पर रिमॉडिफाई कीजिएगा तो वो कर सकते हैं। तो 2 कॉपी बनाइए, एक कॉपी आप सबमिट कर दें और एक कॉपी अपने पास रखें। अच्छा, ये था प्रोजेक्ट प्रपोजल में क्या इंक्लूड करना है। द प्रोजेक्ट प्रपोजल शुड बी प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद योर गाइड। The project proposal should clearly state the project objectives and the environment of the proposed project to be undertaken. The project work should compulsorily include the software development. हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, आप हार्डवेयर का प्रोजेक्ट चूज मत कीजिए। अभी कोई बोलिएगा सर हम सेंसर नेटवर्किंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो प्लीज ओनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर ही करें। The project proposal should contain कंप्लीट डिटेल्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। किस फॉर्म में होना चाहिए? टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि नंबर 1 बोले थे हम। उसके बाद नंबर 2 इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। चैप्टर 3 हम मेंशन कर रहे थे प्रोजेक्ट कैटेगरी के लिए, ठीक है। जैसे कि हम टाइटल चैप्टर में नहीं डाले थे तो चैप्टर 1 में हम दिखाए थे शायद इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 2 में दिखाए थे प्रोजेक्ट कैटेगरी। चैप्टर 4 जिसमें एनालिसिस का पार्ट है उसमें डीएफडी एटलीस्ट अप टू सेकेंड लेवल, ईआर डायग्राम और क्लास डायग्राम और डेटाबेस डिजाइन। अगर आप ईआर डायग्राम दे देते हैं तो क्लास डायग्राम डेटाबेस डिजाइन देने का जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड्स नंबर ऑफ मॉड्यूल, जो हम बोले थे कंप्लीट स्ट्रक्चर में पहले नंबर ऑफ मॉड्यूल दीजिए, टू प्रोवाइड एन एस्टिमेशन ऑफ स्टूडेंट्स एफोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट। Next, data structure as per the project requirement for all the modules. Process logic of each module. हर मॉड्यूल का आपको प्रोसेस लॉजिक दिखाना है, जो कि हम बताए थे। फ्लो चार्ट डिजाइन कीजिए। टेस्टिंग प्रोसेस टू बी यूज्ड। नेक्स्ट, रिपोर्ट जनरेशन। मेंशन टेंटेटिव कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। टूल्स और प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। Next, are you doing this project for any industry or client? Mention yes or no. If yes, mention the name and address of the industry or client. आप अगर इसको करते हैं इंडस्ट्री और क्लाइंट के लिए तो आपको नीचे एक लेटर मिलेगा, दिखाई दे रहा है ये लेटर, प्रोजेक्ट ट्रेनी लेटर। इसको जो है आपको रीजनल सेंटर से सिग्नेचर करके तब अप्रूव करवा के करना पड़ेगा। क्लियर है? अदरवाइज ये आप नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट था, आर यू डूइंग दिस प्रोजेक्ट फॉर एनी इंडस्ट्री और क्लाइंट। और लास्ट पॉइंट, फ्यूचर स्कोप एंड फर्दर एनहांसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर है? क्लियर हो गया? अगर मान के चलिए ये सब चीज आप में इंक्लूडेड रहता है तो इसमें कैंसिल होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट प्रपोजल है, आपका प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसमें पॉइंट सबको आप मिस कर जाते हैं, डीएफडी कोई नहीं बनाता है, या मान लीजिए मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है,
तो अगर इवेल्युएटर चाहे तो हो सकता है नॉट अप्रूव कर दे। तो ट्राई कीजिएगा इसमें जो गाइडलाइंस है इसी को फॉलो करने के लिए, क्योंकि सबको मालूम ही है इग्नू यूनिवर्सिटी वो अपना रूल्स को ही फॉलो करता है, वो दूसरा यूनिवर्सिटी में किस टाइप का सिनॉप्सिस जमा होता है नहीं होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इट हैज इट्स ओन रूल and student have to maintain the rules and regulation that is also declared in the guideline। क्लियर है? ओके तो हम अपना जो बताने का आप लोग को ट्राई किए थे वो लगभग में सारा कुछ बताए हैं। अब जो है आप अपना बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेवेंट टू योर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। यस प्लीज रेज योर हैंड वन बाय वन, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। यस लव कुमार। सर Yes. मेंटर्स किस किस को चूज कर सकते हैं? देखो मेंटर कोई भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जैसे कि डिग्री का जो रेस्ट्रिक्शन है, आप एमसीए अगर कोई किया हुआ है उसके बाद जो अगर 2 इयर्स टीचिंग का एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उसको भी आप रख सकते हैं। लेकिन हेलो आप जैसे यस कि सर। एमसीए हो गया, बीटेक हो गया या एमटेक हो गया या पीएचडी हो गया, किसी को भी आप रख सकते हैं। लेकिन एमटेक और पीएचडी के लिए आपका ये नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट एमसीए एंड बीटेक के लिए आपको उसमें एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस जो दीजिएगा उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्लियर? ओके। अच्छा गाइड के लिए कौन सा, कोई क्वेश्चन पूछे थे, गाइड के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है? सबसे पहले गाइड का बायोडाटा या हम लोग जिसको बोलते हैं सीवी। अभी सीवी में जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखा रहता है जैसे बीटेक, एमटेक या पीएचडी, उससे रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन का जेरॉक्स उसको अटैच करना है, या उसमें अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनके पास तो वो भी अटैच करना पड़ेगा। और जितना भी आप सर्टिफिकेट उसमें डालिएगा सब में गाइड का सिग्नेचर होना जरूरी है। क्लियर? ओके नेक्स्ट जो और कौन है? राजीव सिंह। यस राजीव। सर जैसे कि गाइड है हमारा तो उसके पास अगर वो सर्टिफिकेट जैसे कि आपने बताया 2 साल कंपलसरी होना चाहिए जिस कंपनी में भी उसमें है, तो अगर हम सीवी में भी वो अगर चीज को हम हाईलाइट करते हैं तो वो काफी है या उसके लिए अलग सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं, आपको डॉक्यूमेंट सीवी के साथ डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा गाइड का। अभी सीवी में जो लिखा है उसको प्रूफ करने के लिए उसका डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो समझ 2 रहे साल हैं? का जो एक्सपीरियंस है हो सकता है उस एमसी 2 साल का हाँ, जो एक्सपीरियंस मिनिमम एक्सपीरियंस जो है टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। या इंडस्ट्रियल जैसे आपने बताया अच्छा कि अच्छा बीटेक भी अगर होता है उसका फील्ड भी आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए। ठीक है? ओके हर्ष। सर जैसे बिजनेस के लिए बनाएंगे प्रोजेक्ट तो उसमें कुछ बेनिफिट है या फिर सेम है उसमें भी? अच्छा एक मिनट, विश्वजीत का एक क्वेश्चन आया है जो इग्नू से ही एमसीए होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से एमसीए हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है विश्वजीत? हाँ हर्ष बताओ। सर अगर किसी बिजनेस के लिए बनाते हैं प्रोजेक्ट तो वो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है या फिर सेम रहेगा? सेम रहेगा सर, क्योंकि होता क्या है जैसे आप लोग अभी लर्निंग स्टेज में है, अब मान लीजिए बीसीए कंप्लीट कीजिएगा तब जाके जो है प्रोफेशनल जो है सॉफ्टवेयर बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में आप करते हैं तो उसका भी सेम ही पॉइंट रहता है, उसमें कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। जो अभी होता क्या है, इंडस्ट्री का जो प्रोजेक्ट होता है ना उसका सोर्स कोड आपको देता नहीं है। इंडस्ट्री में अगर करने के लिए जाते हैं तो उस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड इंडस्ट्री के पास ही रहता है क्योंकि प्रोफेशनल रहता है। क्लियर है? जी सर थैंक यू। हाँ तो अभी होता क्या है, एकेडमिक प्रोजेक्ट जो भी आप लोग कर रहे हैं उसमें सोर्स कोड लगाइएगा तो कम से कम आपको ये तो आइडिया हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट में ये लैंग्वेज यूज हुआ है, ऐसा कोड हम यूज किए हैं। अगर सोर्स कोड आपको नहीं दे रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। ओके अच्छा शुभम सर, जिसको मेंटर और गाइड नहीं मिल रहा है वो क्या कर सकता है? अब आप कहाँ से हैं? हेलो शुभम गुरुग्राम से।
तो आप ट्राई करें, जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पर जो काउंसलर है उनसे मिलिए, ठीक है, और रिक्वेस्ट कीजिए गाइड या मेंटर बनने के लिए, तो जरूर उन लोग सपोर्ट करेगा मेरे हिसाब से, ये बेटर रहेगा। क्लियर? यस। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी के पास? यस, श्रीनिवास पी। यस सर, श्रीनिवास। अच्छा सर, टॉपिक क्या क्या चूज कर सकते हैं? अच्छा, कोई भी रियल टाइप का, जैसे कि मान लीजिए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग जो भी टॉपिक चूज करें ना, वो वेरी कॉमन टॉपिक चूज करें, क्योंकि होता क्या है, आपका बाद में इस टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट सबमिशन होगा, उसके बाद वाइवा भी होगा, तो नॉर्मल कॉमन टॉपिक जो रहता है उसमें आपको कम से कम आपको आइडिया तो होगा जो बैंकिंग सिस्टम में कैसे सब एक्टिविटी होता है। तो आप लोग आसान टॉपिक चूज करने का ट्राई करें मेरे हिसाब से। कोई स्टूडेंट बहुत क्रिटिकल टॉपिक चूज कर लेते हैं, बाद में प्रोजेक्ट वाइवा के टाइम में ठीक से जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम में जो है वाइवा का मार्क्स घट जाता है। सर क्लोन प्रोजेक्ट, जी सर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ ऑफ कोर्स, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो बना ही सकते हैं। अभी देखिए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे इग्नू का ही है, इग्नू से रिलेटेड 4-5 सिस्टम आप बना सकते हैं, जैसे कि असाइनमेंट सबमिशन सिस्टम, तो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन सिस्टम करके आप बना सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम इग्नू के लिए बना सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन ग्रीवांसेस बना सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, जो कि अभी बीसीए एमसीए को ऑनलाइन कर दिया है, तो उस टाइप का भी सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यस, ई लर्निंग मैनेजमेंट ऑल्सो गुड। 5th सेम में सबमिट कर सकते हैं क्या? यस, आपको ये जो सिनॉप्सिस है वो 5th सेम में ही सबमिट करना है, क्योंकि इसका अप्रूवल आते आते आपका 6th सेमेस्टर आ जाएगा। उस टाइम में आपको उस अप्रूवल को लेते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर? जी, अपना आरसी के साइट में भी आप बना सकते हैं। आरसी में जो जिस टाइप का वेबसाइट होता है उसके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, और एक चीज हम बता देते हैं, अगर किसी चीज का आपको क्लैरिफिकेशन का जरूरत है या मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं, तो हम लोग का एक ऐप है NSCLC DBG करके, आप प्ले स्टोर में उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो उसमें भी चैटिंग का ऑप्शन है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो होता क्या है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है प्राइवेटली जो है आप अगर बात करना चाहते हैं तो उसमें जाके ऐप में जाके भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हम लोग ये जो YouTube का जो चैनल का लिंक है उसमें भी फ्री वीडियो अटैच कर देते हैं। क्लियर? ऐप स्टोर में आपको NHCLC DBG, ठीक है, तो ऐसे करके सर्च कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ऐप आ जाएगा। उसमें भी चैटिंग का ऑप्शन है और फ्री क्लासेस का भी ऑप्शन रहता है, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या सिनॉप्सिस से रिलेटेड भी हो। क्लियर? और ग्रुप में हम ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम शेयर कर देंगे। क्लियर है? यस, एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। सर अभी तो जो है फिलहाल, सर इन व्हिच ग्रुप? नहीं, ये एक ऐप है, ये जो है प्ले स्टोर में NSCLC DBG का एक ऐप होगा, उसमें भी आप अपना क्वेरी को शेयर कर सकते हैं, या मान लीजिए जिस चीज में आप बना रहे हैं उसको वो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमको अभी लिंक नहीं है, हम ट्राई करते हैं। यस, NSCLC दरभंगा, ये एक ऐप है, इसमें जाके भी जो है चैटिंग में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं।
अच्छा ग्रुप का, ओके ओके 1 मिनट, हम लोग का सिनॉप्सिस का ग्रुप है। ये सर ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। ये जो दिए थे हम, हाँ, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बन सकता है? यस सर बन सकता है, नो प्रॉब्लम। यस यस यस, सैंपल हम सेंड कर देंगे, जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, हम शेयर कर देते हैं। और किसी का कुछ क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। यस, सिनॉप्सिस सैंपल हम फॉरवर्ड कर दिए हैं ऑलरेडी। यस, ये ग्रुप है, सिनॉप्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट अगला जो है होगा तो पॉसिबल होगा तो 1-2 और फ्री क्लासेस दे देंगे, या मान लीजिए आप लोग जो बना रहे हैं उसको हम लोग वेरीफाई करके भी एक बार बोल सकते हैं, जो इसमें क्या क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है, आज इतना ही है। फिर जो है ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू कर सकते हैं। ओके, अच्छा, किसका बोले, विश्वजीत, प्लीज आप जो है ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा, उसमें आप डॉक्यूमेंट को शेयर कीजिएगा प्राइवेटली, क्योंकि ग्रुप में प्लीज शेयर मत कीजिए, नहीं तो वो चीज फिर किसी के पास चला जाएगा। तो प्राइवेटली शेयर करके जो है उसमें कंसल्ट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके उसमें कीजिएगा। ओके, थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे विद अस।